Periodic classification of elements. Classification means identify similar species and grouping them together. Lavoisier's divided element into two main types known as metal and non-metal. Dobrin's law to tribes. According to this law, in the certain tribe, grouping of three elements of the atomic mass of the central element was in the arithmetical means of the atomic mass of the over two elements B. In some tribes, subtraits are three elements possible near in the same atomic mass theory. The law was rejected. Example: atomic mass for lithium, sodium, and potassium are the representing the 7, 23, and 39. Thus, the means of the atomic mass of the first and third elements each. Limitation of the Dobrin's tribe. He could identify only a few such tribes, as so the law could not gain importance in the tribes of ferric, cobalt, nickel. All the three elements have a nearly equal atomic mass and thus does not follows the above law. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. अभी तक के जो हम पढ़े वो लिमिटेशन ऑफ डोबरिन के बारे में बताया गया, जो ट्राइब के अंतर्गत मैं तीन क्रम में उनको सजा करके सेट किए थे. अब यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव बताया गया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द एलिमेंट एंड द अरेंजिंग इन द सच ए वे दैट इन द 8 एलिमेंट्स starting from the given one's properties, which is the respiration of those of the first arranging in order, increasing atomical weight like in the 8 notes of the musical scale. यह म्यूजिकल स्केल जैसे सारे गामा पाधा नीसा, और फिर रिटर्न आता है सानी धापा मागा रेसा. उसके अनुसार इसको अरेंज किया गया कि 8 एलिमेंट के बाद फिर से लौट करके वही एलिमेंट के क्रम आते हैं. तो drawing back the Newlands of law octave, according to a Newland 56 elements existing in the nature and no more elements would be the discovered in the future, but there several new elements were the discovered whose properties it did not fit into the law of the octave. ऑक्टेव के टाइम में 56 एलिमेंट मौजूद थे, उनके अतिरिक्त उनको अरेंज करने के लिए भविष्य में जो एलिमेंट का डिस्कवर होगा उसके लिए कोई जगह बनी हुई नहीं थी, इसलिए इसे भी चेंज माना गया या सीमित माना गया. इन ऑर्डर टू द फिट न्यू एलिमेंट्स इनटू द टेबल, न्यू लैंड्स एडजस्टिंग टू एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम्स but some unlike the element under in the same columns. This Newlands classification was not accepted, जिसके कारण इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था. फिर मेडविलीव्स इन द पीरियोडिकल टेबल है. मिडलिव अरेंजमेंट 63 एलिमेंट, इसमें आप देखें कि इसमें 56 एलिमेंट थे, बढ़ के यहाँ क्या हो गया 63 element. Known at that time in the periodical table, according to the Mendeleev's, the properties of this element are the periodical function to the atomical mass, and this table is the consisting of the 8 vertical column. इसमें 8 कॉलम थे एंड कॉल द ग्रुप कहा गया था एंड हॉरिजेंटल को रॉ कहा गया था पीरियोडिकल के रूप में. इसके आगे फिर मेरिट्स ऑफ द Mendeleev's periodical table. At some places of order to the atomical weight was the changing in order to the justify the chemical and physical nature. उसके केमिकल और फिजिकल नेचर के अनुसार उनको अरेंजमेंट किया गया था एटॉमिक वेट के अनुसार. और मेडलीव लेफ्ट सम गैप, और मेडलीव ने आपको लेफ्ट साइड से गैपिंग किया था कि अगर यूनिवर्स माने आगे डिस्कवर टाइम अगर भविष्य में कोई एलिमेंट आएंगे तो उनको उनमें जगह दी जा सके. ऑन द स्टेट ऑफ द मेडलीव इन द पीरियोडिकल टेबल्स वाज दैट इन द व्हेन इन इनर्ट गैस, इनर्ट मान नोबल गैस के बारे में बताया गया. डिस्कवर इन द कुड बी द प्लेसेस एज ए न्यू ग्रुप, उसके लिए एक अलग ही नोबल गैस के लिए बनाया गया था, जिसमें आपको देखें कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन को रखा गया है इन ऑर्डर में. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीरियोडिकल टेबल. इट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द इट इज द पीरियोडिकल टेबल एलिमेंट इन द अरेंजिंग द वर्टिकल रॉ इन द कॉल द ग्रुप्स एंड द हॉरिजेंटल रॉ आर द कॉल द पीरियड. तो यहाँ पे वर्टिकली रूप से जो बताए गए हैं उसे आपको बताया गया कि रो होते हैं, और जो आपको हॉरिजेंटल रूप से होते हैं उसे क्या कहा गया, पीरियड कहा गया. तो देज आर द 8 ग्रुप इंक्लूडिंग बाय द रोमन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 and 8. These elements belong to the first 7 groups and the divided into the sub groups division A and B. एक ही ग्रुप को दो भागों में बांटे जाते थे, ए और बी के में. बेसिकली सिमिलरली दिस एलिमेंट आर रिप्रेजेंटिंग बाय द हैंड्स ऑफ द साइड ऑफ ईच ग्रुप इन द कंटेनिंग टू द सब ग्रुप्स ए विच इज द राइट एंड सब ग्रुप्स एंड बी ग्रुप आर द 8 कंसिस्टिंग टू द 9 एलिमेंट अरेंजिंग इन दिस ट्रेड.
They are the 6 periods 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and the orbit are representing by elements. बताया गया है कि पीरियड के रूप में 1, 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में जो क्रम बनाए गए थे वो उनकी कक्षाओं की संख्या के रूप में दी गए थे. In order to the according to the more element period, the 4, 5, 6 are the divided into the two halves, and the first half of the element in the place in the upper left corner and the second half in the lower right columns in the each box. Achievement of the Mendeleev periodical tables. These arrangement of element in the group are the periodical made of the study of element. इसमें एलिमेंट के एक ग्रुप में पढ़ने पर उसके क्रम से उसके आगे के सारे एलिमेंट में उनके गुण मिलते थे, जैसे उसकी संयोजकता, उसकी वैलेंसी, एटॉमिक नंबर से ऑर्बिट की संख्या है, ये सब चीज़ें इससे मिलती थी. Some sense of that in the properties of element are the particularly group are known as those of the other can be easily predicted. Predication of the new elements and these properties. Many gaps of the left in this table in the for the undiscovered elements. However, properties of this element could be the predicted in the advantage of these expressed positions. This help into the discover of these elements. These elements silicon, gallium, जर्मेनियम वे आर डिस्कवर इन द मैनर्स. तो उनमें जो जगह छोड़ी गई थी कि भविष्य में जब एलिमेंट का आविष्कार होगा या डिस्कवर होंगे तो उनके लिए जो जगह छोड़ी गई थी जिसमें आपको सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम है, तो उनके वही गुण वहाँ पे दर्शाए गए जिस जगह पे उनकी पीरियोडिक टेबल में बनाई गई थी. करेक्शन ऑफ द डाउटफुल एटॉमिक मास. कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मेंडलीव ने करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द सर्टेन एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ देयर द एक्सप्रेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टीज. कुछ के वजन में अंतर पाए जाते हैं, उसके भी हिसाब से उसमें ध्यान दिया गया था. लिमिटेशन ऑफ द मेंडलीव क्लासिफिकेशन. मेंडलीव क्लासिफिकेशन के कुछ सीमाएं होती हैं जिसके बारे में बताया गया, मैंने कुछ उसके नियम या उसके लिमिटेशन के बारे. ही कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के लिए पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं दी गई है, इसलिए सबसे ऊपर में एक साइड हाइड्रोजन को लिखा गया. इन इज द पीरियोडिकल टेबल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ द अल्कली मेटल्स एज वेल एज विद द हेलोजन ग्रुप में सबसे ऊपर में उसको दर्शाया गया. द आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी द गिवन डिफरेंस पोजीशन इन द एटॉमिक नंबर इज टेकन एज बेसिक एंड विच इज द डिस्टर्ब द सिमेट्रिकल ऑफ द पीरियोडिकल टेबल. तो आइसोटॉप्स जो होते हैं सो उसके एलिमेंट जो होते हैं अगर चेंज किए जाएंगे तो उसके स्वरूप में अंतर हो जाएगा, इसलिए आइसोटॉप के लिए उसी जगह को किया गया. डिस्टर्बिंग ना हो इसके लिए उसको वहीं पे रखा गया पीरियोडिक टेबल में. द एटॉमिक मास माने उसमें नंबर जो दिए गए हैं पीरियोडिक टेबल में उसके एटॉमिक मास के हिसाब से दिए गए. डू नॉट इंक्रीजिंग इन द रेगुलर मैनर्स इन द गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट. माने उस एलिमेंट के बाद फिर उसी के दूसरे नंबर को नहीं उठाया गया, उसके जगह अब जैसे हाइड्रोजन है तो उसके बाद हीलियम, फिर लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस ढंग से उसको अरेंज किया गया. सो इट वाज नॉट द पॉसिबल टू द प्रिडिक्ट ऑफ द हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन द टू एलिमेंट्स. माने एक ही एलिमेंट के दो जैसे हाइड्रोजन है उसी का आपको डाइट्रियम है, ट्राइट्रियम है, तो उसके लिए अलग अलग जगह नहीं बनाए गए हैं. मॉडर्न पीरियोडिकल लॉ जो अब आधुनिक रूप से प्रयोग प्रैक्टिकली आपको पीरियोडिक लॉ बनाए जा चुके हैं उनके बाद. दिस लॉ आर द गिवन द हेनरी मोस्ली इन 1913 में. इट स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एज द periodical functions of their atomic numbers and causes of the periodic in the probability in the may be defined as the relation of the similar properties of the element and the places in the group of the separated by the certain definite gaps of the atomic number. हर एक एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको अरेंज किया गया. इसमें ए बी के रूप में सब ग्रुप के रूप में उसे डिवाइड नहीं किया गया है. दिस कॉज ऑफ द प्रॉपर्टी इज द resembles in the properties in the element is the representing by the same value cell electronic configuration. और इसी के द्वारा सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी अरेंज किया गया है जो पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है. मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल. मॉडर्न पर्पस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल इज द अकॉर्डिंग टू विच इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द प्रिडिक्ट फंक्शंस. दे आर द एटॉमिक नंबर आर नॉट द हॉरिजॉन्टल रॉ कॉल्ड द पीरियड. दिस ग्रुप हैज़ बीन द नंबर 1, 2, 3 to 18. 1 से लेके ये 18 तक के अरेंज किया गया है फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट. अगर इसमें ध्यान दें तो पहला जो ग्रुप होगा वो एस का होगा जिसमें 2 होंगे. फिर दूसरा जो होगा सो पी का होगा और उसमें देखेंगे एस डी होगा और उसमें टोटल देखेंगे तो 10 रो के रूप में होंगे. और इसके आगे जब देखेंगे तो पी का होगा और वो टोटल 6 होंगे. अगर तीनों को जोड़ दिया जाए 2, 10 और 6 को तो देखिए ये कितने हो गए 18. तो यही 1 से लेके 18 तक का क्रम आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगा लेफ्ट टू राइट की ओर. द एलिमेंट बिलोंग टू द particular group make the family and usually name after its
फर्स्ट नंबर। तो उसके जो नंबर दिए गए हैं वो उसके एलिमेंट के नाम के पहले अक्षर से लिया गया है। जैसे हाइड्रोजन का H है, वैसे लिथियम का Li है, और इसी ढंग से बाकी है। In this group, all element containing the same number of the valency electron, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उसी ढंग से आपको कॉलम वाइज उसे अरेंज किया गया। इट इज़ अ पीरियड ऑफ एलिमेंट द सेम नंबर ऑफ सेल्स बट वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग बाय द 1 यूनिट। माने एक ऑर्बिट में ही वो इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए क्रम में बढ़ती चली जाती है। लेकिन वही नीचे की ओर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के होते हैं, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल कैन बी कैलकुलेटिंग बाय द 2n स्क्वायर, यानी ये 2n स्क्वायर के रूप में है, जिसको कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि अगर k l m के रूप में इसको रखते हैं तो 2n स्क्वायर, यानी पहला ऑर्बिट है ये, तो पहले ऑर्बिट में 2n, इसको क्या लिखा गया था 2n, तो ये n के जगह हम 1 लेंगे और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे में कितने हो जाएंगे, तो दूसरे में 2 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2, ध्यान देंगे 2n, n का मतलब है, यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 2n स्क्वायर। तो यहाँ पे पहली ऑर्बिट k है, तो 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 2 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। दूसरी ऑर्बिट l है, तो इसमें फिर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, यानी 2 × 4, तो इक्वल कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में अगर आते हैं तो k l m होगा, तो m में कितना हो जाएगा 2 3 का स्क्वायर, तो 2 × 9 इक्वल 18। तो इसी क्रम से इसको बताया गया है कि 2n स्क्वायर वेयर n इज ए नंबर ऑफ द गिवन सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की संख्या पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इसी प्रकार 32 64 आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो ट्रेडिंग ऑफ द मॉडर्न periodical टेबल द ट्रेंड्स ऑब्जर्व द सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन द एलिमेंट इन द मूविंग फ्रॉम डाउन टू द ग्रुप फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे आने पर उसके ऑर्बिट बढ़ते चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट इन द पीरियड एंड द डिस्कशन बिलो। तो वैलेंसी उसकी संयोजकता बदलती है। वैलेंसी में बी द डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन एज द कैपेसिटी ऑफ द एटम फॉर एन एलिमेंट विच इज द एटम ऑफ द एलिमेंट इज द ऑर्डर टू द एक्वायर टू द स्टेबल कॉन्फिगरेशन। बताया जा चुका है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता 2 से लेकर 8 तक की होती है। तो वही बताया गया कि इट इज द एलिमेंट इन द वैलेंसी सेल्स इट सम स्पेशल केस इनटू, माने कि खास प्रकार के हाइड्रोजन हीलियम सब में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन संयोजकता होती है, और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं उसकी आखिरी कक्षा में 8 होता है, जिसे ऑक्टेव कहा जाता है, और उसके ऑक्टेट अस्थायित्व होने के लिए वैलेंसी के लिए चाहिए। एटॉमिक साइज इज रेफरेंस टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द न्यूक्लियस ऑफ द आइसोलेटेड एटम इज द आउट मोस्ट सेल ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता है उसके सेल के आकार भी बढ़ते चले जाते हैं। The atomic radius discussion 1 moving from the left to the right among to the period. This is due to the increasing in nuclear change which take the pull of the electrons crossing to the nucleus in the reducing the size of the atom. तो धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और अपने ही इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस होने पर उसके साइज बड़े होते हैं, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल सेंटर पॉइंट में बढ़ते चले जाते हैं प्रोटॉन के, वैसे वैसे वो श्रिंक होते जाते हैं, वो सिकुड़ने लगते हैं। तो दिस ग्रुप एटॉमिक साइज डिक्रीज होने लगता है, उसका आकार छोटा होने लगता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर आने पर, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल। दो मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज। इट इज द पीरियोडिकल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट बाएं से जब दाईं ओर जाते हैं मेटलिक नेचर में, तो डिक्रीजिंग विद द नॉन मेटलिक कैरेक्टर, उसमें इंक्रीज होते हैं, यानी आपको शुरुआत में मेटलिक गुण और बाद में नॉन मेटल के गुण दर्शाए जाते हैं। इट ग्रुप मेटल कैरेक्टर इंक्रीजिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम विद द नॉन मेटलिक कैरेक्टर ऑफ डिक्रीजेज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? द रिलेटिव द टेंडेंसी ऑफ एटम टू द अटैचिंग टू द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोग्रेविटी। In this period from left to right the values of electrogravities increase। जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ रही है, देखिए फ्रॉम टू लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाईं ओर, तो इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, और विल इज द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ऊपर से जब नीचे की ओर आएगा तो इलेक्ट्रोग्रेविटी क्या होगी? घटेगी।
यहाँ पे बताया गया है कि पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अब कितने हैं 7 की ओर हो चुके हैं। अगर हम ध्यान दें तो इसे एस ग्रुप कहते हैं और एस ग्रुप में दो आपको रो के रूप में बने हुए फर्स्ट और सेकेंड के रूप में। इसे जो है सो आपको डी ग्रुप कहा जाता है। इसमें टोटल देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 10 ग्रुप बने होते हैं। और इसके आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो ये पी ग्रुप होता है जो टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं। जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं 18 हो गया। और नीचे की ओर जो होता है इसे एफ ग्रुप कहा जाता है और ये टोटल होते हैं 14। तो गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जिसमें एक अंक जो है सो यहाँ देखिए लिथियम का एक ले लिया गया है जिसके कारण ये 14 की जगह 15 दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये एस ग्रुप 2, डी ग्रुप 10, पी ग्रुप 6 और एफ ग्रुप कितने होते हैं 14। इसमें इसके नाम आपको एक एक करके बताए जाते हैं जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरिक, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन और इसी क्रम से आप रुबिडियम, स्टार्टियम, यूट्रिप, आप कंटिन्यू आगे की ओर नामोबियम इस ढंग से इसे पढ़ा जाता है। लगभग में कहा जाता है कि इसे याद करें तो पहले आप सिंबल को लिखने का क्रम यहाँ पे बताया जाएगा कि इन सिंबलों को हम कैसे लिख सकते हैं और आसानी से याद कर सकें। इसमें जैसे बताया गया कि एस 2 होते हैं, डी 10 होते हैं, पी 6 होते हैं, टोटल जोड़ के कितना हुआ था 18। ये आपको पहला क्या था एस ब्लॉक में था, दूसरा क्या था डी ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में कौन थे 2 आपको देख रहे हैं कि आ रहा है। फिर डी ब्लॉक में टोटल कितने आए थे 10 आए थे। और फिर यहाँ पे बताया गया था क्या कि पी ब्लॉक में टोटल कितने आए थे तो 6 आए थे। तीनों को जोड़ा गया था तो कितना हुआ था टोटल हुआ था 18। अब यहाँ देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और लास्ट आया था 7। तो सबसे पहले नंबर लिखना सीखना चाहिए कि नंबर कैसे लिखा जाएगा। तो आप क्रम पे ध्यान दीजिए। तो पहले बॉक्स फर्स्ट कॉलम फर्स्ट ये अंक जो है एक, आप पहले भी एटॉमिक के बारे में पढ़ चुके कि हाइड्रोजन सारे से अलग होते हैं, किसी के भी साथ ये नहीं होते हैं। तो फर्स्ट 1 हुआ, फिर सामने ही आगे की ओर बढ़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। साइमेट्रिकली आते हैं 18 नंबर पे और फिर उससे एक ही बॉक्स नीचे बढ़ने पर आपको 3 आएगा, फिर 4, देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर देखिए 11, 12, 13, 14, 16। इसी प्रकार से ये क्रम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इन क्रमों को दो जगह आप देखिएगा 57 पे और 89 पे, ये दोनों अंक नीचे की ओर आ जाते हैं। आप 57 से शुरू करेंगे तो ये 15 हो जाएंगे और 58 से शुरू करेंगे तो एफ ब्लॉक 14 हो जाएंगे। तो इसमें 14 कंटिन्यू आप गिनती कर सकते हैं 58 से 71 तक और 90 से 103 तक। और ये केवल पहले अंक लिखने का क्रम करेंगे तो ये टोटल 118 तक के चले जाएंगे। तो उसके बाद सिंबल का नंबर आता है और रॉ पर भी ध्यान दें तो पहला नंबर 1 से लेकर 7 तक आएगा, फिर दूसरा देखिए तो 1 छोड़ के दूसरे नंबर से आएगा, दूसरे नंबर से आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद नीचे वाले तीसरे पे आइएगा तो देखिएगा 4, 5, 6, 7। फिर से एक बार रिपीट करें, फर्स्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फिर पहला लाइन छोड़ दिए, फिर देखिए दूसरा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 हो गया एस ब्लॉक का क्लियर। उसके बाद क्या किए 2 ब्लॉक छोड़ दे, फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ दे। तो फर्स्ट सेकेंड छोड़ेंगे तो अब ये कितने होंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4। तो पहला हुआ 7, दूसरा हुआ 6 और तीसरा हुआ 4। जैसे इधर किए हैं वैसे ही क्रम। अब इसको सामने की ओर अगर देखें तो यहाँ देखिएगा कि ये 2 होते हैं तो ये 10 फिर यहाँ तक के आएंगे, 10 हो गया जैसे डी का पूरा। तो फिर 2 ब्लॉक ऊपर जाएंगे, जैसे साइमेट्रिकल लाइन पाते हैं तो 2 यहाँ उठे हैं तो 10 के बाद 2 लाइन फिर ऊपर उठ जाएंगे। और यहाँ से कितने तक के जाएगा 6 तक के जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर एक हीलियम का केवल ऊपर उठेगा। तो इस प्रकार से आप ये 7 लाइन का ये बॉक्स पहले बनाना सीख चुके होंगे और नीचे तो 2 लाइन 14 का था। अब आता है इसका नंबर लिखने के बाद इस सिंबलों को कैसे याद किया जाएगा। तो इसे जैसे ही ध्यान देते हैं तो यहाँ देखिएगा कि एच है ली ना कर रब से फरियाद, मैं सिंपल वर्ड में याद करेंगे तो उसके सिंबल आराम से याद हो जाएंगे। फिर देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए या राजी जो करा लीजिए।
फिर यहाँ देखिए साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंको नी क्यों झगड़े। फिर देखिए यारी जरा निभा मौत तक रोए राह में पड़े आग में कूद जा। फिर देखिए ला हाफ्ता वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी। ये सब सिंबल बाद में आए थे इसलिए उनके नामाकरण नहीं किया गया कि उसे क्या बनाया जाए। फिर देखिए यहाँ जैसे ये एस ब्लॉक ख़त्म हो गया आपके, फिर यहाँ पे आपका डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर पी ब्लॉक में जैसे ही आएंगे तो पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम की ओर नीचे की ओर आएगा, जैसे बैगन आलू गाजर इन थैला। जिसे उसके बाद है कि कहे सियाजी सुनो प्रभु। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके ओ सावधानी से टीपो। फिर कल बाहर आई आरती हे हैनरा आगरकर 0 रन आउट भी कर सकते हैं, यू वो है। इसके प्रकार फिर एफ ब्लॉक को अगर रिटेन करना है तो एफ में देखिए सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाज जवाब लगते हो। फिर वही है कि यहाँ पे है कि कंसेप्ट में आपको दिया गया है ऐसे पापड़ ये नापो पुराने आम कम बिकेंगे कैफ में ऐसे फरमाओ कि मैडम नाश्ता लाओ। या इस ढंग से आप सिंबल लिखना सीख लेंगे। इसको रिमेंबर करना आपको आ चुका था कि ये कैसे होते हैं, इसके नामकरण भी जानते हैं और उन्हें अच्छे से आप याद कीजिएगा। धन्यवाद।